Rutherford's atomic model, 4 points. Always remember. So many times it would be asked asked in the examination. First point, according to this theory, according to this model, Rutherford's model, all the electrons revolve around the nucleus in the same manner as the planet does around surrounding of the sun. Okay? Around the sun. Second point, number of electrons is equal to number of protons. That's why the whole atom is electrically neutral. Third point, the whole mass of the atom is concentrated at the small central region, which is called the nucleus. All right, and size of the nucleus is very less than to the size of atom. These are the 4 points of the Rutherford's atomic model, which you need to remember. Now let's discuss what are the main limitations of Rutherford's model. Limitations of Rutherford's atomic model. So basically they are mainly point-wise. If we'll be writing kind of point-wise, then there will be 2 points which you need to remember. First point states that whenever any particles move anywhere in an accelerated motion, then it should continuously lose its energy. If any object is moving in a circular path, then it should always, in accelerated motion, it will always lose some of its energy. Finally, the energy should be continuously decreasing, and finally it should be stopped. Where? In circular path. In circular path, always acceleration will be there. Why? Whenever any particle will be moving around a circular path, whether it is the uniform circular motion or variable circular motion, doesn't matter. Speed might be constant in circular motion, and if we are specific about uniform circular motion, then you can say speed is constant at each and every point. But since the direction of the particle is changing continuously, that's why in vector form, that is velocity wise, its velocity will be different everywhere. Speed is constant, direction is different. That's why velocity is continuously changing at each and every point. That's why there will be change in velocity. Whenever there is a change in velocity, acceleration produces. Acceleration will be towards the center, tangential acceleration and centripetal acceleration will be involved when there is a variable circular motion, and if there is uniform circular motion, then only centripetal acceleration will be there, due to which the particle will be continuously moving in the circular path. Getting this? Due to which the concept of centripetal force comes in the picture, right? So if, let's suppose the speed of the particle or electron is v, then v2 should be v, v3 should be v, v4 should be v. But since direction is changing, that means change in velocity should be there, v2 minus v1. Whether you can say, let's suppose here and here, if we'll consider these two things, so let's suppose this is a 3 j cap, then it will be 3 minus I cap. Magnitude is same, directions are different. So v2 minus v1, if we'll be doing it, then it would be 3 j cap minus 3 minus I cap. Obviously 3 j cap plus 3 I cap. Even if we'll be taking here this one, then if we'll be taking 3 I cap, you can't cancel 3 j cap minus 3 I cap. This result will be 3 j cap minus 3 I cap only. And if we'll be taking the magnitude of velocity, it will be under root of 3 square plus 3 square, 3 root 3. Getting this? So that's why acceleration will be there, since there is changing velocity. Now, since the electron is in continuously accelerated motion, and that acceleration is, direction of this acceleration is toward the center, that means it is the centripetal acceleration. So therefore, after a certain time, it will be radiating the electromagnetic radiation.
Electron is what kind of particle? Electrical particle. And it is a charge, and moving charge always create a magnetic field as well, right? We also know that whenever charge is in motion, two types of field. Charge is there, so there will be two types of radiations which can be radiated by a charged particle. Electrical radiations, magnetic radiations. So if the charge will be moving because of the nucleus force of attraction, Coulombic force of attraction, then during this accelerated uniform circular motion, it should radiate electromagnetic radiations, electrical radiations as well as magnetic radiations. Because of these radiations, its energy should be continuously decreasing, right? Afterwards, what should happen? If its energy is decreasing, its speed should be slowed down. So then it should be moving in lower paths, lower circular path, and finally, as its speed will be continuously decreasing because of loss of energy, finally, it should make a spiral path and it should collapse with this nucleus. It should fall in this nucleus. And the existence of an atom should be destroyed. But in actual, it does not happen. So, Rutherford's atomic model could not explain these things. Why the energy of a particular orbit is stable. Although it is in continuously accelerated in circular motion, this motion is accelerated motion. That's why it should radiate electromagnetic radiations, and hence its energy should be continuously decreasing, and finally it should collapse with the nucleus. But in practice, or if it would happen, then there will be no existence of the atom. In practice, we don't realize it. That's why this model could not explain that why it is so, why this collaborating, right? After that, the second point which you need to remember, after the spectrum, Bohr's spectrum, right? So Bohr's spectrum obtained for hydrogen atom. We know that in chemistry you have studied, might be, that whatever kind of a spectrum we obtain is a line spectrum, right? For example, although we will be proceeding further, but still you should be remembering, because in 11th grade you had done it. So Lyman, Balmer, Paschen, Baggett, Fonda-Umbrey, these are the spectrums, different. So you draw these kind of lines, right? What does it mean? This is the line spectrum. It is not continuous. Continuous means, just like in interference, we say this is the bright light, this is the dark light. This is the bright light, this is the dark light. Means dark means perfectly dark, means there is no gap in any line of dark, means there is no single brightness. Everything is dark. And in perfectly bright means there is no single dark portion. It means no alternative thing should be there. This is either pure white, pure dark, pure white, pure dark, right? In that way. So line spectrum means this is like strips of, in between there is a narrow, thin, dark line should be there. That is called this line spectrum. Got it? It happens in this hydrogen atoms spectrum, right? But according to this Rutherford's model, what would happen? If the energy would be decreasing of this accelerated electron during the circular motion, then how it should fall in this? It should fall continuously. As its energy is gradually decreasing, it will be continuously collapsing in such a way. I am making a smaller orbit so that you will understand it directly. So each and every time this kind of thing should happen. And each orbit, since its energy is continuously decreasing, its frequency is equals to h nu. Energy is changing, h is constant,
energy decreasing, frequency should be changing, frequency should be decreasing, and how it should be decreasing continuously, means there should be no gap. What kind of spectrum you are obtaining? Continuous. This is what kind of a spectrum? Continuous. Perfectly dark, you are able to see this. There is no gap, although we show it in such a way, but in practice, according to the Rutherford model, it should happen. Whatever spectrum you are obtaining because of the radiating electromagnetic rays, it should be continuous. There should be no gaps between two lines. They should be in that way. Continuous, 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 continuous. Such a spectrum should be obtained. Whether it would be from higher to lower doesn't matter at all, right? In such a way, this is lower state, this is higher state, first state, second stage. So this spectrum should be like this, according to Rutherford. But in practice, or whatever we obtain, it does not happen. These are the different orbits. So we don't get this kind of a spectrum. Instead of it, we get such a spectrum for different orbits. Once the electron jump from higher orbit to lower orbits, or higher energy state to lower energy state. Rutherford could not explain. These are the limitations, right? How many of you understood it? तो देखिए साहब, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, that is बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. दैट मिनिमम वैल्यू थ्रू ऑफ एनीथिंग which can be transferred from one place to another, from one point to another. So that smallest value of anything will be known as its quanta. We are obtaining the quantization condition according to the Bohr's. Bohr's किसके लिए? यही atomic model में. All right. So बोर्ड ने क्या बोला कि साहब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे अभी हम लोग जानते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2, 8, 8, इस तरह के कुछ पढ़ते हैं, जो भी है, कि इस कौन से ऑर्बिट में मूव करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. और यहाँ पे मूव करते टाइम आप इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन से नेचर का मान रहे हैं? पार्टिकल नेचर का मान रहे हैं. लेकिन अब जब डी ब्रॉगली आ चुका था, तो उसने ये भी बता दिया था कि मैटर भी, कोई मैटर हो यानी कि कोई पार्टिकल हो, उसके साथ भी वेव नेचर एसोसिएट हो सकता है. बड़े पार्टिकल्स के लिए वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मास ज्यादा हो जाता है. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv. h की वैल्यू 6.06 या 03 इंटू 10 -34 जूल होता है ना, अपॉन mv. अब मास अगर आपका केजी ऑर्डर का हो या 1 kg 2 kg कुछ भी हो, तो यहाँ पर तो ये बहुत -34 वाला फैक्टर चल रहा है. v कुछ भी हो जाए -28. इतनी छोटी वेवलेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते, यानी कि आप उस वेवलेंथ को एसोसिएट नहीं कर सकते. लेकिन अगर मास इस ऑर्डर में होता, जैसा इलेक्ट्रॉन का होता है -31 kg, ये ऊपर जाएगा तो -34 + 31, अब ये मेजरेबल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा. ये सब कुछ हम देख चुके हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के अंदर. तो उस थ्योरी को उठाया जाए, डी ब्रोगली की उस थ्योरी को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मूवेबल पार्टिकल का एक लीनियर मोमेंटम होता है. और अगर लीनियर मोमेंटम है तो उससे रिलेटेड एक वेवलेंथ भी होती है, यानी कि उसका एक वेव नेचर भी होता है. वेव नेचर एसोसिएटेड होता है किसी भी मूवेबल पार्टिकल का. ठीक है, रेस्ट पर होगा तो लीनियर मोमेंटम ही नहीं है, तो फिर कोई वेवलेंथ भी नहीं, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड. तो घूमते हुए पार्टिकल का मूवेबल पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है. ठीक है, और जितनी उसकी स्पीड कम होगी उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी. ये भी यहां से समझ में आता है, ये भी यहां पे समझ में आता है कि जितनी कम स्पीड हो और मास जितना छोटा हो, उतनी ज्यादा इजीली हम इस वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी नेग्लिजिबल, स्पीड भी कोई लाइट की स्पीड तो है नहीं यहाँ पर, सो वो भी एक कंसिडरेबल अमाउंट में है. ठीक है, तो इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होनी चाहिए. अच्छा साहब, तो कैसी वेवलेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो
तो उसने बोला बोर्ड ने कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह से मानना है आपको, तो पहले तो देखो पार्टिकल वे में ये क्या कर रहा है, पार्टिकल वे में ये एक सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा है, हमेशा एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी फिक्स एनर्जी से ये चलता रह रहा है इसी सर्कुलर पाथ में, पार्टिकल नेचर के बेस पर। ठीक है, अब इसका मतलब ये, और हम ये भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की, आपको ध्यान हो तो टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, टाइम पीरियड हमने निकाला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आर का फॉर्मूला रखा था, याद आ रहा है क्या? कितना फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग? क्यू एम 2 पाई m बाय क्यू बी। याद आ गया? इसमें कहीं पे रेडियस वगैरह नहीं आ रही, हमें पता है कि हमेशा जब चार्ज है इस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड एक ऑर्बिट के अंदर हमेशा सेम रहेगा, तो अगर ये फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है हर बार टाइम सेम टाइम के अंदर, मतलब अगर ये 2 सेकंड के अंदर एक रिवॉल्यूशन कर रहा है या 1 सेकंड में कर रहा है, तो फिर हर 1 सेकंड के अंदर ही 1 रिवॉल्यूशन होने चाहिए, या 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हो रहे तो हर बार 10 रिवॉल्यूशन ही होने चाहिए। अच्छा साहब, तो इसको वेव नेचर से कैसे समझे? तो ये तो है आपका पार्टिकल, ये पार्टिकल, पार्टिकल को अगर मैं स्ट्रेट मोशन दे दूं तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और इसी को अगर मुझे वेव की मोशन में कन्वर्ट करना हो तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? ये पार्टिकल, यहां पे जब पार्टिकल आया तो मान लीजिए ये 1 पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, यानी कि जब आप इसको वेव की टर्म्स में इसकी मोशन को शो करोगे तो ऐसी मोशन नजर आएगी आपको। ये देखिए, इसी तरीके से आगे बढ़ती है वेव, अपनी एनर्जी को आगे कैसे लेकर जाती है, इसी तरीके से लेते जाती है ना। इन जनरल साइनसोइडल वेव रिप्रेजेंटेशन का एक वेव का शेप कैसा भी हो सकता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जनरली साइनसोइडल वेव के अंदर कंफर्टेबल रहते हैं, इस वजह से हम इस फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गया पार्टिकल नेचर की मोशन, कि अगर पार्टिकल की टर्म्स में समझनी है मोशन, लीनियर मोशन, तो आप ऐसे समझोगे, और पार्टिकल वेव की टर्म्स में लीनियर मोशन समझनी है तो आप ऐसे समझोगे। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। अच्छा ओके, अब ये तो लीनियर मोशन थी, अगर मैं इस मोशन को थोड़ा सा बैंड कर दूं, ये देखिए ये पार्टिकल यहां था, फिर यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, मान लीजिए यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, इसको मैं थोड़ा बैंड कर दूं तो ये कैसा दिखेगा? ये वाली बीच वाली लाइन को बैंड कर दिया, इस तरह का दिखेगा। इसको पूरे को तो देखो किस तरह की कुछ मोशन पॉसिबल होती है, कि अगर वेव टर्म्स में चल रहा होता तो ये कुछ ऐसी मोशन जनरेट कर रहा होता वेव के टर्म्स में। अच्छा, यहां से चलो एक और अच्छी चीज है, पूरा ढंग से नहीं बना मेरे से, उससे दूसरी चीज समझाता हूं। मान लीजिए ये देखिए स्टार्ट यहां से हुआ और यहां पर आकर के ये देखिए 1 वेव यहां पे बनी, ये 1 वेव, ये 1 ऑसिलेशन हो गया। अभी सर्कुलर ऑर्बिट पूरा नहीं हुआ है, अभी रिवॉल्यूशन बाकी है। सेकेंड वेव यहां पे बन रही है, यहां पे बन रही है ए इस जगह पे, ये सेकेंड वेव हो गई कंप्लीट। थर्ड वेव यहां पे बनी और ये थर्ड वेव यहां पे कंप्लीट हो गई। जहां से चला था वहां पहुंचा नहीं। अब अगर मैं इसको उसी तरह आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से देखो, ये अपने पाथ को चेंज कर बैठा कि सेम पाथ को फॉलो कर रहा है? चेंज कर बैठा, चेंज कर रहा है ना। अगर सोचिए तो एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यस सर। 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। फिर से बात करते हैं और अब इसको थोड़ा सा और परफेक्ट वाला बनाते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्बिट में कंप्लीट एग्जैक्टली जहां से चला था वहीं पे आकर के इसकी वेव्स को खत्म करना है मुझे, ठीक है।
देखिए जहां से चला था वहीं पे आ गया क्या, है ना, क्योंकि मेरा सर्कल वगैरह थोड़ा परफेक्ट नहीं हो सकता, माइट भी उसके कारण थोड़ा छोटा मोटा आपको अलग जगह पे दिख रहा हो, लेकिन क्या जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया क्या ये? यस सर। है ना? यस। सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर होता और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, मान लीजिए इसके अंदर मैं शो करूं, ये अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन शो करना है, तो कंपलसरी बताइए, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे मान लूं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां 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 पे पॉसिबल हो सकता है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन रखना है, कौन सी पोजीशन पे रखूं? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे? थर्ड। रीजन? मैक्सिमम रिपल्शन होना चाहिए बीच में, मतलब मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन हो, वहां पे अरेंज होंगे, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी इनसे डायरेक्टली उस जगह पे रहेगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पे होना चाहिए वेव की टर्म्स में? यस। एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? एक ऑर्बिट की के अंदर ट्रेवल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? सेम। क्या ये स्पीड से मूव करते हैं क्या? यस सेम स्पीड से मूव करते हैं? यस सर। क्या कभी ये टकरा सकते हैं? नो नो सर। इसका मतलब अगर इसके पास भी मैं बोल दूं कि इसके पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेव नेचर दे दिया मैंने, या एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा मान लीजिए, या एच इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की टर्म्स में मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वाली आएगी, फ्रीक्वेंसी होता है आपका सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा वेवलेंथ हमने इसके अंदर एसोसिएट कर दिया, तो इसकी वेवलेंथ ये है, तो इसकी भी तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ही होगी। इसका मतलब जिस शेप से ये चल रहा है, जिस तरह की वेव को ये ट्रेवल करके लेकर के जा रहा है, सेम उसी तरह की वेव को ये भी लेकर के जाएगा। तो जिस टाइम ये यहां से स्टार्ट होगा, क्या ये उस टाइम पे यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्या हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही पहुंचेंगे, और क्या कभी भी ये टकरा पाएंगे क्या, या हमेशा इसी ऑर्बिट में जिस तरह से मैंने वेव बनाई है हमेशा के इसी के अलाउंग मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे? यस सर। यस सर। ये ठीक उस तरह से जैसे आपने विजिट स्पैनर देखा हो, आप आजकल जो वो होता है ना, खिलौना चलता है, बच्चे घुमाते हैं उसको, वो इसी शेप का देखा होता है यस सर। यस सर। और उसको तेज घुमाओ दोगे तो सर्कुलर पाथ ही नजर आएगा। यस सर। तो यही मान लीजिए कि ये वो वेव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, उतनी देर में ये यहां चल करके यहां पहुंच गया, जब ये यहां आया तो यहां पहुंच गया, जब ये यहां से ये अपनी सेकंड वेव कंप्लीट करी, तो इसने जो यहां पहुंचा था वो यहां से चल करके यहां पे आ गया। कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रॉन ही अपनी मोशन को इस तरीके से डिस्टर्ब कर दे, देखिएगा ये चला यहां पर और इसके बाद मान लीजिए ये यहां चला, क्या ये बीच में फिर कहीं पे इलेक्ट्रॉन से टकराने की सिचुएशन बन जाएगी क्या आगे यस सर। फॉरकमिंग पास के अंदर? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें पता है, अगर मैं इस सर्कुलर पाथ की रेडियस मान लूं r, तो इस पूरे की सरकमफेरेंस कितनी हो जानी चाहिए? 2 पाई r। 2 पाई r। वेवलेंथ की टर्म्स में बात करूं तो एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वन ऑसिलेशन को ट्रेवल करने में जो भी होती है, अगर यहां पे इस पूरे सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करवाना है, उसमें 3 वेव्स गई हैं, 3 वेव्स गई हैं, तो मैं क्या, मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 पाई r शुड बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा। 3 लैम्डा। 3 लैम्डा। इसके बाद और बड़ा पाथ हो जाएगा तो बता दीजिए, जिसके अंदर मान लीजिए 4 वेव्स बन जाएं या 5 वेव्स बन जाएं या 6 वेव्स बन जाए, तो हमेशा क्या 3.5 लैम्डा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये ऐसे हाफ पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। 3 के बाद होगा तो क्या होगा? 4 के बाद क्या आएगा? 5। क्या आपको ये चीज समझ में आती है कि 3.1 लैम्डा पॉसिबल नहीं है, 3.5 लैम्डा पॉसिबल नहीं है, 3.9 लैम्डा पॉसिबल नहीं है, या 4.2 लैम्डा पॉसिबल नहीं है? रीजन बाद में इनके दिक्कत आ जाएगी, ऑर्बिट के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन्स के पाथ टकराने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन
कि जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, हाँ कि ना? Yes, समझ में आती है sir. ना? Yes, इसी sir. बात को अगर 5 में बना दूं 5 के अंदर, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। यस, हर बार बस अब इसी पाथ के अलोंग मूव करते रहेंगे। ये इस तरीके से मूव करते रहेंगे इसी पाथ। तो कभी भी इनके अंदर हाफ ऑसिलेशन नहीं होगा, होगा तो पूरा होगा वरना नहीं होगा। तो 1 के बाद 2 होगा। तो जनरल कंडीशन बता सकते हो क्या कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जो फिक्स एनर्जी देता हो, फिक्स एनर्जी देता हो, इज इक्वल टू एच न्यू देता हो, एच न्यू देता हो, यानी कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट को एक स्टेशनरी फिक्स स्टेशनरी एनर्जी के ऑर्बिट मानने के लिए मुझे नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सर्कुलर पाथ की जो सरकमफेरेंस है वो वेवलेंथ से कैसे एसोसिएटेड होनी चाहिए? N lambda. N plus 1 lambda. 2 pi r is equals to n N lambda। lambda. N lambda. n lambda मिनिमम कितनी होगी? 1। 1. तो व्हाट इज n? इंटीजर, इंटीजर बोल दो ना, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, इंटीजर नंबर। ये किसने बताया? बोर्स ने, बोर्स ने बता दिया। क्या लैम्डा का ये तो हुआ अभी तक कि हाँ भाई सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को बने रहने के लिए द बेसिक कंडीशन इज 2 pi r शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। एक फिक्स एनर्जी के स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स एनर्जी के स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको मूव होते रहने के लिए जो जनरल कंडीशन रिक्वायर्ड है इट शुड बी 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा। वो इसी पाथ में हो सकता है 5 वेव कंप्लीट कर ले, या 3 वेव्स कर ले, या 4 वेव्स कंप्लीट कर ले, या 2 वेव्स कंप्लीट कर ले, लेकिन ये कभी भी 2.5 2.3 हाफ ऐसे रैंडम वेव्स कंप्लीट नहीं करेगा, करेगा तो पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। 1 वेव के बाद 2 वेव पूरी होनी चाहिए, 3 वेव पूरी होनी चाहिए। एन लैम्डा इज द जनरल कंडीशन। ये बोर्ड ने बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर बोर्ड को याद आया लेकिन ये लैम्डा अगर मैं एसोसिएट कर रहा हूं डी ब्रॉगली से तो कर रहा हूं, तो डी ब्रॉगली ने तो एक और चीज बोली है कि लैम्डा इज, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं, 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट करूं तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 2 pi r upon 2 pi r is equal to NH over P. सो लैम्डा की जगह रख देता हूं 2 pi r अपॉन n इज इक्वल टू h अपॉन mv। थोड़ा सा अब मैंने कुछ mv को इधर भेज दिया और 2 pi n वाले इस सिचुएशन को इधर भेज दिया, बताओ क्या बना? 2 pi नीचे आ गया h के, ये 2 pi नीचे आ गया, n ऊपर चला गया, mb r के पास आ गया। mb r कुछ जाना पहचाना सा है क्या? व्हाट इज mb r? Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल n, फॉर्मूला होता है प्यार, l बोले तो लव, हिंदी में प्यार, ठीक है। l इज इक्वल टू प्यार, p का मतलब लीनियर मोमेंटम, mb खत्म, ठीक है। mbr क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम, अंग्रेजी मॉम। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi। बोले तो द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi। बोर्स ने बता दिया साहब कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है तो घूमने के लिए व्हाट इज द मोस्ट बेसिक कंडीशन? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि उसका उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होना है। अगर ये है कंडीशन तो वो ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होंगे। स्टेशनरी ऑर्बिट्स अगर आप ले रहे हो फिक्स एनर्जी वाले तो वो उन्हीं के लिए पॉसिबल होंगे जिसमें h अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम किसके लिए डिफाइंड है? किसी घूमती हुई चीज के लिए। घूमती हुई चीज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट के लिए डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए h अपॉन 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए।
This is called the Bohr's quantization condition. How many of you understood it properly?